All right, so let's start with biomolecules. Now, the word itself kind of gives you a hint. It's self-explanatory in a way. Bio का मतलब होता है living and molecules means molecules, right? So biomolecules is nothing but अगर मैं generally बताऊँ तो general definition होती है biomolecules की the molecules which are produced by living organisms, right, and which kind of helps the organism in carrying out all the biological processes and all the processes which are essential for life, right? तो वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाए जाते हैं जो उन्हें मदद करते हैं इन कैरिंग आउट ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दे आर रेफर टू एज बायोमोलिक्यूल्स अब जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है बायोमोलिक्यूल्स की द डेफिनेशन सेज ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन अ लिविंग सेल बायोमोलिक्यूल में वो सारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जो एक लिविंग सेल में पाए जाते हैं ठीक है दिस वाज द डेफिनेशन व्हिच वाज गिवन इन ओल्ड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी बट अगर आप करंट डेफिनेशन देखोगे तो हम सबको पता है बायोमोलिक्यूल्स अब हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं टू ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बट हम सबको पता है हमारी बॉडी इज अ कंकॉक्शन ऑफ both organic and inorganic compounds, right? So we have both organic as well as inorganic compounds. So in this chapter, we will be studying about all the organic and inorganic compounds which are present in our body, right? So I hope that is clear to everybody. Now, the question arises, how do you analyze the chemical composition of a cell? That's the question that comes to our heads, right? How do you identify what all chemicals are actually present in a cell? Of course, by experimentation, right? One simple answer. So देखो एक बहुत simple experiment की मदद से we'll try and understand this and at the same time we'll do the simultaneous decoding of NCERT as well, ठीक है? So first let's just quickly go through the notes. देखो सबसे पहले what do you have to do? You have to take a living tissue. अब living tissue में आप कोई vegetable का टुकड़ा भी ले सकते हो. You can take a vegetable piece or you can take a liver tissue, liver piece. I mean, these are the two examples which I mentioned in the textbook, which is why we are taking these two examples. अब देखो, so what do you exactly have to do? You have to take a piece of liver. आप एक liver का piece ले सकते हो. You can take a vegetable piece, right? And what you can actually do is when you take this liver tissue, एक living tissue लेना है, तो अब आप क्या करोगे? इस living tissue को आप एक डालोगे mortar और pestle में. Mortar और pestle होता है basically अदरक कूटने वाला. I'm sure you would have heard about it. I've also drawn an image here for your reference purpose, right? तो mortar और pestle, this is the mortar and then you have the pestle. अब इस living tissue को आप डालोगे इस mortar pestle में and at the same time you'll also add trichloroacetic acid. अब देखो एस्टिक एसिड हम सबको पता है एस्टिक एसिड होता है CH3COOH, राइट? CH3COOH यहाँ पे बेसिकली यानी ये कार्बन जो है इसे ये 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH. दिस इज प्रीटी मच व्हाट द कॉम्पोजिशन ऑफ एस्टिक एसिड लुक्स लाइक, राइट? अब जहाँ पे इस कार्बन के समय तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगी विद क्लोरीन, राइट? तो ये देखो ट्राइक्लोरो, अब ये बन गया ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? अब ये मैं क्या करूंगी मोटा पेसिल में अब इस लिविंग टिश्यू के साथ ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड भी ऐड कर दूंगी. तो आई विल मेक अ स्लरी, एक पेस्ट सा बना लूंगी. आई विल मेक अ स्लरी और अ पेस्ट यूजिंग ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड with the help of mortar and pestle. Now, once the paste has been made, it's almost like then you take a muslin cloth, cheese cloth ले लो, कुछ भी cheese cloth, एक soft सा कपड़ा लेना है, cheese cloth, muslin cloth, cotton cloth. You can take all of these, any of these cloth. और इससे क्या करोगे ना, you'll filter out the content. तो जैसे कि try and relate it with जैसे हम पनीर को छानते हैं, ठीक है? जब हम दूध को फाड़ते हैं और पनीर बनाते हैं, तो we take a muslin cloth, we filter out the content, right? सारा पानी पानी नीचे आ जाता है और जो पनीर होता है वो उस मसलिन क्लॉथ में रह जाता है. तो इन द सिमिलर वे यूजिंग द चीज क्लॉथ यू फिल्टर आउट द कंटेंट. तो जितना भी सॉल्युबल पार्ट होगा यानी जो भी पानी में खुल गया होगा वो तो नीचे आ जाएगा और जो भी एसिड जो भी इनसोल्यूबल पार्ट होगा वो उस कपड़े में ही रह जाएगा, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें दो पोर्शंस मिलते हैं, राइट? वी हैव द एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है, एंड देन वी हैव द एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है? जो भी छन गया उसको वो एसिड सोल्यूबल पूल में आ जाएगा और जो भी ऊपर उसमें कपड़े में रह गया वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ जाएगा. एसिड सोल्यूबल पूल इज आल्सो रेफर टू एज फिल्ट्रेट एंड एसिड इनसोल्यूबल पूल जो होता है बच्चा उसको हम बोलते हैं रेटेंटेट. अब एसिड सोल्यूबल पूल की अगर मैं बात करूँ तो एसिड सोल्यूबल पूल में बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स. एसिड सोल्यूबल पूल यानी जो पानी बेसिकली एसिड में खुल के एसिड में जो घुल गया था आसानी से, जो फिल्टर हो गया उस चीज क्लोथ के थ्रू, ठीक है? उसमें बेसिकली हमारे सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं. अब ठीक है, और जो एसिड इनसोल्यूबल पूल यानी जो कपड़े में रह गए, जो छने नहीं, ठीक है, जो रेटेंटेट पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे सारे माइक्रोमोलिक्यूल. अब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम सॉरी, एसिड इनसोल्यूबल पूल में हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. अब अगर मैं बात करूँ एसिड सोल्यूबल पूल की, तो एसिड सोल्यूबल पूल में माइक्रोमोलिक्यूल, व्हाई डू यू रेफर टू देम एज माइक्रोमोलिक्यूल्स? बिकॉज माइक्रो मींस उनका कहीं ना कहीं साइज से रिलेशन है. तो बिकॉज माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं इनका साइज रेंज करता है फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन. 18 से लेके 800 डाल्टन तक. आई एम सॉरी, आई हैव एडेड एन एक्स्ट्रा एल हियर. डाल्टन को डी ए सिंबल होता है, डी ए. तो या
So micromolecules are referred to as micromolecules because the size ranges from 18 to 800 Dalton. तो usually below 1000 Dalton होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में दो डेटा दे रखे हैं, एक तो 18 से 800 की रेंज दे रखी है और एक बोल रखा है लेस देन 1000 Dalton. So you make sure you remember both of these, right? उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैक्रोमोलिक्यूल्स की, मैक्रो को मैक्रो क्यों बोला? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द साइज, राइट? तो साइज या मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूँ मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो साइज या मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट्स यूजुअली मोर देन 10,000 Dalton. वो 10,000 Dalton से भी ज़्यादा होता है। कितना? 10,000 Dalton से भी ज़्यादा होता है। एसिड सोल्यूबल पूल की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आते थे। माइक्रोमोलिक्यूल्स में सारे बेसिकली मोनोमेरिक यूनिट्स आप देखो, जैसे अमीनो एसिड हो गए, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास क्या आ जाता है, क्या आप बता सकते हो? एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल, ऑल ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस, ये भी माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं। सिंपल शुगर्स हो गई हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड ऑल दोज राइबोस, ऑल ऑफ दीज। देन न्यूक्लियोटाइड्स। Nucleotides, basically nucleotides क्या होता है? Nucleotides has got three components: a sugar, a pentose sugar basically, a pentose sugar, and then apart from that a nitrogenous base and a phosphate group. So it has a pentose sugar, it has a nitrogenous base and a phosphate group. तो nucleotides are basically monomeric units. तो यहीं पे macromolecules की अगर मैं बात करूँ, तो macromolecules में हमारे पास आ जाते हैं polymeric units, right? Now polymers exactly क्या होते हैं? Polymers are nothing but basically polymers are nothing but repeating units of monomers, right? So polymers are made from repeating monomeric units. तो देखो, जैसे अगर हमारे एसिड सोल्यूबल पूल की बात करें, एसिड सोल्यूबल पूल में हमारे पास मोनोमर आ गया अमीनो एसिड, और भाई कई सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, दे फॉर्म द प्रोटीन्स, राइट? तो जो पॉलीमर है वो एसिड इंसोल्यूबल पूल में आ गया। ऐसे ही हमारे अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली मोनोमेरिक यूनिट्स है, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाते हैं, तो दे फॉर्म द पॉलीमर विच इज न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं, राइट? ऐसे ही हमारी सिंपल शुगर, जैसे ग्लूकोज मिलके कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाते हैं, लाइक स्टार्च, लाइक ग्लाइकोजन, राइट? ऐसे ही, तो दिस इज, बट एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, व्हिच इज लिपिड, एंड यू विल गेट टू सी दैट इन अ व्हाई हैव आई एडेड। एक्चुअली में ना, लिपिड्स का साइज जो होता है वो लेस देन 800 Dalton है, ठीक है। यू विल स्टडी दैट इन अ व्हाइल, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो बेसिकली अगर मैं लिपिड्स की बात करूँ, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज बिलो 800 Dalton फॉर श्योर। बट देन यू विल वंडर कि अगर इसका वेट 800 Dalton से कम है, तो ये भी बाकी सभी कंपोनेंट्स की तरह फिल्ट्रेट वाले पार्ट में छन के आ जाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। लिपिड्स एक्चुअली रेटिनटेट वाले पार्ट में ही रह जाते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो देखो, बहुत सिंपल रीजन है इसके पीछे की। देखो, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल। अब लिपिड्स देखो, ऑल्दो दे कम अंडर द रेटिनटेट पार्ट, बट हम ये एक लाइन आप देखोगे एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, व्हेन वी डू द एनसीईआरटी डिकोडिंग we'll get to see that. But lipids जो होते हैं, they're not strictly a biomacromolecule because the molecular weight is definitely less than 1000 Dalton, but still it always comes in the acid insoluble pool. हमेशा acid insoluble pool में ही रह जाता है। Why? Because it forms vesicles. Now अभी बहुत लोगों के सर के ऊपर से गया होगा, so let me try and explain it. देखो, लिपिड्स को हम एक स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल इसलिए नहीं कहते हैं। पहला रीजन है दे लैक अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया एसिड इंसोल्यूबल पूल में यूजुअली आपने देखा पॉलीमेरिक पार्ट थे, पॉलीमर्स थे, राइट? बट आप ऐसा नहीं देखो, ठीक है, तो उसमें बेसिकली पॉलीमर्स दिखते थे। लिपिड्स लैक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल कहलाने के लिए, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल यूजुअली पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जिसके आपने देखा न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, कॉम्प्लेक्स शुगर्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद चलो वो भी हटा दिया, जब तो पॉलीमर नहीं है, ठीक है, तो वो एक पहला रीजन हो गया। दूसरी बात, जो बेसिकली एसिड इंसोल्यूबल पूल में आ रहे थे, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था दैट वाज आल्सो more than 10,000 Dalton. But if you see in this case, these lipids, they have low molecular weight. इनका molecular weight 800 Dalton से भी कम होता है, right? तो उसके बाद भी हम इनको एसिड इंसोल्यूबल पूल या मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज रीजन बीइंग, लिपिड्स एक्चुअली में क्या कहते हैं ना, लिपिड्स एक्चुअली दे फॉर्म वेसिकल्स। अब आपको समझ नहीं आएगा, व्हिच इज व्हाई आई आल्सो एडेड अ डायग्राम हियर। फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखिए, लेट्स से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को अगर मैं ऐसे एक्सपैंड करके बताऊं, लेट्स से ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ बेटर वे। ओके, तो देखो, अगर मैं इसको जूम इन करूं, तो ये मान लो ये हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये हेड, एंड दीज आर द टेल्स, राइट? तो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मदद से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। गिव मी अ मोमेंट। अब जैसे कि आप, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्चुअली रिमेंबर दिस, बट सेल मेम्ब्रेन याद है? जब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। ये जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, दीज लिपिड्स, दीज आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स।
ये जो lipids होते हैं बच्चा, these are amphipathic molecules, and when I say these are amphipathic molecules, what do I exactly mean by that? I mean कि they both, मतलब they have both a water attracting, basically इनके पास एक hydrophilic part होता है और एक hydrophobic part होता है. They have a water loving is basically the hydrophilic heads, and they have a water repelling, the hydrophobic tails, right? तो क्या होता है ना, aqueous environment में what happens is these are hydrophobic tails. The tails are hydrophobic in nature. तो aqueous environment में यानी जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो टेल, अब देखो जब आपने क्या बेसिकली हमने क्या किया, जब हमने स्लरी बनाई तो कहीं ना कहीं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, तो जब वो एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया, जब वो स्लरी बनी, तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं बेसिकली दे क्लस्टर टुगेदर, दे काइंड ऑफ कम टुगेदर टू अवॉइड कांटेक्ट विद वाटर. ठीक है, तो ये सब एक साथ ना इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है स्पॉन्टेनियसली, इफेक्ट ऐसा कोई करा नहीं रहा है. So they kind of, they cluster together to avoid contact with water, and they spontaneously form a holosphere. एक hollow सा sphere बना लेती हैं खुद ही. So it's more like, if you try and relate it with this one, just give me a moment. तो क्या होता है ना, खुद ही ऐसे करके एक तरीके से, एक तरीके से ये देखो, ये खुद ही एक hollow सा sphere बनाना स्टार्ट कर देती हैं, एक hollow sphere बनाना स्टार्ट कर देती हैं with, the hydrophobic tails pointing inwards, as you can clearly see. जो tails है वो अंदर की तरफ फेस कर रही है, and the heads are facing outwards, right? तो एक sort of कह सकते हैं कि एक self sealing membrane, एक self sealing stable membrane create कर लेते हैं, तब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, right? इकट्ठे हो जाते हैं, hence you know ये छन नहीं पाते हैं, hence they cannot really pass through the filtrate, और ये actually filtrate में नहीं retentate part में रह जाते हैं because they form vesicles. I hope that is clear to everybody. इतना सबको समझ आया? I'm sure. ठीक है, अब अगर मैं एवरेज ठीक है, तो पहले फर्स्ट लेट्स रीड दिस मच फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन फर्दर. Also, NCERT of this particular chapter specifically is very, very cryptic and ambiguous. Trust me on that. Everything has been randomly given anywhere. Give me a moment. All right, there you go. All right, so just let me choose a suitable color and then we'll be good to go. Just give me a moment. Is this working fine? Okay. All right. Now the question is, how do you analyze the chemical composition? Now we can continue asking in the same way, what type of organic compounds are found in living organisms? अब देखो, actually मैं introductory paragraph में just mentioned absolute random stuff, तो it's completely irrelevant. तो इसी तरीके से एनसीईआरटी बोलती है कि what type of organic compounds are found in living organisms? किस तरीके के organic compounds पाए जाते हैं living organisms में, and how does one go about finding the answer? And how do you find the answer to such question? कि कौन से तरीके के organic compounds पाए जाते हैं? Now to get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver, etc., and grind it in trichloroacetic acid using a mortar and pestle. ठीक है, तो हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं बच्चा, हम कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं. यू कैन टेक अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर. आप कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले सकते हो, जिसकी वेजिटेबल या पीस ऑफ लिवर ले लो. यू ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, Cl3COOH. ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में से ग्राइंड करो मोटार और पेसिल की मदद से, और एक स्लरी बन जाती है. यू एक्चुअली ऑब्टेन अ थिक स्लरी. Now, if we were to strain this through a cheesecloth or cotton cloth, we would obtain two fractions. ठीक है, और अगर मैं इसे चीज क्लोथ या कॉटन क्लोथ की मदद से छानूंगी तो मुझे दो पोर्शंस मिलेंगे, मुझे दो फ्रैक्शंस मिलेंगे. एक वो पोर्शन जो इससे छन गया होगा, which is called the filtrate, or more technically the acid soluble pool, and the second one जो basically चीज क्लोथ या कॉटन क्लोथ में रह गया होगा, which is the retentate or the acid insoluble fraction. Now, scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. अब एनसीईआरटी ये बोल के चली जाती है, and then it just talks about random stuff. अब इसके बाद इसकी immediate continuation आपको actually मिलेगी 9.3. So 9.1 से directly just jump to 9.3, जहाँ पे इसने इसकी continuation दे रखी है, which is why I say, especially when it comes to chapters like biotech, biomolecules, and some other chapters, you will have to follow the teacher's sequence because NCERT is very ambiguous, especially of certain chapters. ठीक है, तो जैसे कि एनसीईआरटी बोलती है, साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल. तो जो छन किया है बेसिकली फिल्ट्रेट पार्ट जो है, उसमें साइंटिस्ट को कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले. एक्चुअली में रेटेंटेट पार्ट में भी ऑफ कोर्स कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. तो अब देखो, अब एनसीईआरटी बोलती है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. दिस वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल. देखा, इसकी कंटिन्यूएशन 9.3 में जाके करी है. तो एक फीचर कॉमन था इन सभी कंपाउंड्स में जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए गए. क्या था वो, क्या कॉमन था? They have molecular weight ranging from 18 to around 800 Daltons approximately. तो basically जितने भी compounds actually acid soluble pool में पाए गए, उन सबका जो molecular weight था वो 18 से 800 Daltons के बीच में था. It was ranging from 18 to 800 Daltons approximately. Acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds: protein, nucleic acids, polysaccharides and lipids. बता जो acid insoluble fraction होता है, basically acid insoluble pool जो होता है, just give me a moment.
एसिड इंसोल्यूबल पूल, वन सेकेंड, एसिड इंसोल्यूबल पूल बेसिकली जो था उसमें 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हमें। इंसोल्यूबल बेसिकली जो ऊपर रेटेंटेट पार्ट है, जो ऊपर रह गया, उसमें 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। कौन से थे? प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड्स थे, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, राइट? लेट मी चूज अ बेटर कलर, गिव मी अ मोमेंट। ओके, ठीक है। तो प्रोटीन्स बेसिकली पॉलीमर्स आप देख सकते हो, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, लिपिड्स, बट लिपिड्स एक्सेप्शन आप देखोगे। Now, these classes of compounds, with the exception of lipids, have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above. ठीक है, तो एनसीईआरटी भी क्लियरली बोलती है ये जो क्लासेस ऑफ कंपाउंड, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, पॉलीसैकेराइड्स विच इज कॉम्प्लेक्स शुगर्स, ठीक है, लिपिड्स को हटा दो, ऑल ऑफ दीज हैव मॉलिक्यूलर वेट्स इन द रेंज ऑफ 10,000 ऑफ डाल्टन, ठीक है, 10,000 डाल्टन और उससे भी ज्यादा। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स, आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप। इसी कारणवश जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग कंपाउंड्स बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन्हें हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। पहली कैटेगरी है वन दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। एक तो वो कैटेगरी है जिनका मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से भी कम है, विच आर यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाइल एसिड इंसोल्यूबल पूल की अगर मैं बात करूँ, दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन, जो छनते नहीं है, जो ऊपर रेटेंटेट पार्ट में रह जाते हैं, एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में रह जाते हैं, चीज क्लोथ में बेसिकली रह जाते हैं, वो है सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनको मैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकती हूँ, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब नाउ द मॉलिक्यूल्स इन द इंसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। अब देखो, लिपिड्स को हटा दो, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, एनसीईआरटी says जो भी मॉलिक्यूल्स एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं वो ज्यादातर पॉलीमेरिक यूनिट है। नाउ we've repeated that multiple times. Then why do lipids whose molecular weights do not even exceed 800 daltons come under acid insoluble fraction? तो फिर एनसीईआरटी बोलती है कि why do lipids, फिर lipids जिनका जो पहली बात तो ना तो polymeric substances है, because polymers are made from repeating monomeric units, they lack a polymeric structure. उसके अलावा they have a low molecular weight which is even less than 800 daltons. उसके बावजूद भी why are they coming under the acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction में क्यों आ रहे हैं? ठीक है, उसका रीजन हमने अभी बताया, बिकॉज लिपिड्स जो होते हैं एंटीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। एक्वस एनवायरनमेंट में ये जो टेल्स होती हैं इन्हें पानी से डर लगता है, एक साथ चिपक जाती हैं to avoid contact with water and they spontaneously form a hollow sphere चिपक जाती हैं, which is overall इनका जो molecular weight है वो increase हो जाता है, and hence they get retained in the macromolecular fraction, which is why lipids, they indeed have smaller molecular compounds, and they're present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोल रही है लिपिड स्मॉल मॉलिक्यूलर लिपिड्स का स्मॉल मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड है, 800 डाल्टन से भी कम वेट होता है, और लिपिड दे नॉट प्रेजेंट एज सच, लिपिड मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट नहीं है। लिपिड एक्चुअली में प्रेजेंट है इन स्ट्रक्चर्स लाइक आर सेल मेम्ब्रेन्स, अदर मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि विच इज वन एंड द सेम, राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स है उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइले की फॉर्म में। अब फिर एनसीईआरटी बोलती है व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू वी डिस्टर्बिंग सेल स्ट्रक्चर। तो हम टिश्यू को ग्राइंड कर रहे हैं यूजिंग मोर्टार पेसिल, ठीक है, इन ट्राइक्लोरेस्टिक एसिड, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब सेल को ऐसे स्लरी बना रहे हैं तो वे काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग सेल स्ट्रक्चर, वी डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस। फिर क्या होता है बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है और बाकी सारी मेम्ब्रेन्स होती है वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ब्रोकन इनटू पीसेस, एंड द मिनट दीज हाइड्रोफोबिक टेल्स दे काइंड ऑफ कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, तो वो क्या करती है, एक होलो स्फीयर बना लेते हैं, गेट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, जहाँ पे टेल्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रही होती हैं, आई जस्ट शो यू, राइट, ठीक है, एक ऐसे जहाँ पे टेल्स अगर आप देखोगे तो टेल्स जो होती हैं दे आर काइंड ऑफ पॉइंटिंग इनवर्ड्स, वहाँ से अंदर की तरफ, एंड द हाइड्रोफोबिक हेड्स hydrophilic heads are pointing outwards, right? So they form vesicles which are not water soluble, जो पानी में घुलती नहीं, and hence they kind of get retained in the macromolecular fraction. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. इसलिए ये जो membranes हो basically जो lipids होते हैं, they get separated along with the acid insoluble pool. Acid insoluble pool के साथ separate out हो जाते हैं, छन के नहीं आते, and hence they get retained in the macromolecular fraction. और इसीलिए एनसीईआरटी और हम भी बोलते हैं, give me a moment, एनसीईआरटी और हम सब बोलते हैं कि बेसिकली जो लिपिड्स होते हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल लिपिड्स, स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। एसिड सोल्यूबल पूल में रफली सारे वो कंपोनेंट्स आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, सो दे काइंड ऑफ रफली represent the cytoplasmic composition. साइटोप्लाज्म की जो composition है ना, रफली वही represent कर रहा है, so kindly make a note of this line. The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. जो बच्चा macromolecules हैं
द मैक्रोमोलिक्यूल्स बचा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं बेसिकली फ्रॉम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो रिटेन रह जाते हैं इन द एसिड insoluble fraction and together they represent the entire chemical composition of living tissues or organisms और साथ में मिलके एसिड soluble और एसिड insoluble पूल मिलके पूरी लिविंग कॉम्पोजिशन लिविंग केमिकल कॉम्पोजिशन दिखाते हैं टिश्यू की इन समरी वी represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class wise we observe that water is most abundant chemical in living organisms अब हम ये पढ़ेंगे भी अगर आप देखोगे ना एक्चुअली दिस इज द एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल में एक्चुअली क्या केमिकल्स होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन का एक रफ एवरेज आपको निकाल के दिया है एक अप्रोक्सीमेशन दिया है जैसे आप देखोगे वाटर हमारे देख व्हाट इज द परसेंट ऑफ टोटल सेल्यूलर मास सेल का जो टोटल मास है उसमें वाटर 70 से 90% से वाटर ही है right? Which is why we say water is the most abundant chemical in living organism, and which is why we say that we are nothing but living, we're walking and talking vessels containing water, we're vessels containing water, right? Water is सबसे ज़्यादा abundant chemical है हमारी body में 70 से 90%, right? And yeah, trust me, you have to remember these values. ठीक है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम या मोस्ट अबंडेंट केमिकल है वाटर विच इज 70 to 90%. वाटर के बाद आ जाते हैं प्रोटीन विच आर 10 to 15%. वाटर के बाद आ जाते हैं प्रोटीन विच आर 10 to 15%. फिर बच्चा हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड ठीक है हमारा डीएनए वगैरह विच इज 5 to 7%. उसके बाद एक एग्जैक्ट सीक्वेंस है जिसमें आप याद रखो विच इज कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड आयंस ठीक है कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2% एंड आयंस 1%. वंस अगेन लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर. वाटर सबसे ज्यादा मोस्ट लाइक वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट ठीक है 70 से 90%. फिर आ जाते हैं हमारे प्रोटीन विच आर 10 to 15%. फिर आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%. उसके बाद बचा कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और आयन सेम सीक्वेंस में याद रखो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड आयन carbohydrates 3%, lipids 2%, and ions 1%. I hope that is clear to everybody. इतना सबको समझ आया? Now let's quickly go back through the notes. Just give me a moment, and we're good to go. I think yeah, we discussed that. I also brought it for you. ठीक है, the water 70 to 90%, protein 10 to 15%, nucleic acid 5 to 7%, पे carbohydrate, lipids और ions को आप देखोगे 3 to 1. This is exactly the sequence in which you must remember this. ठीक है, उसके बाद बचा आ जाता है हमारे पास ASH analysis test. अब ये तो बात हो गई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अब रही बात अगर यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो हमने चलो पता कर लिया कि हमने सेपरेट आउट कर लिया बेसिकली कि एसिड इंसोल्यूबल कंपोनेंट्स एसिड इंसोल्यूबल पूल में अलग कंपोनेंट्स एसिड सोल्यूबल पूल बट अब हम इनऑर्गेनिक इन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको सेपरेट आउट कैसे करेंगे तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज़ बोलती है एनसीईआरटी बोलती है in higher classes you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. तो एनसीईआरटी बोलती है हायर क्लासेस में बच्चा आप पढ़ोगे कि हाउ डू यू एनालाइज द लिविंग टिश्यू की एक लिविंग टिश्यू को हम कैसे एनालाइज करें एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है तो ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वंस अगेन एनसीईआरटी बोलती है बच्चा इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज द लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कि बड़ी क्लासेस में बच्चा आप पढ़ोगे कि कैसे हम एक लिविंग टिश्यू को हाउ डू यू आइडेंटिफाई लिविंग टिश्यू सैंपल हम एक लिविंग टिश्यू को कैसे एनालाइज या आइडेंटिफाई करते हैं वंस अगेन बट एनसीईआरटी बोलती है हाई क्लासेस में बच्चा आप पढ़ोगे हाउ हाउ डू यू एनालाइज द लिविंग टिश्यू को कैसे एनालाइज करते हैं मतलब आपने सेपरेट आउट तो कर लिया बट उसके बाद केमिकल्स का एनालिसिस कैसे करोगे एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पहचानोगे कि इसमें अच्छा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं It will suffice to say here that one extracts the compounds and then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all the other compounds. ठीक है तो बेसिकली एनसीईआरटी बोलती है इट विल सफाइस मतलब इट विल बी सफिशिएंट टू से एटलीस्ट हमारे 12th के बेसिक लेवल पे या नीट के बेसिक लेवल पे इट विल बी सफिशिएंट इनफ टू से कि व्हेन यू एक्सट्रैक्ट बेसिकली हम क्या करें क्या होता है ना मोटा मोटा अगर समझे तो बेसिकली आप क्या कर रहे होगे एक बार सेपरेट आउट कर लिया उसके बाद यू विल एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड्स आप एक एक करके कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करोगे you will subject the extract to various separation techniques फिर then you will subject them or you will expose them to various separation techniques ठीक है फिर आपने कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया फिर अभी प्योर फॉर्म में तो होंगे नहीं तो आप इन कई सारी सेपरेशन टेक्निक्स का मदद करो कई सारी सेपरेशन टेक्निक्स की मदद उठाओगे कई सारी सेपरेशन टेक्निक्स की मदद से यू विल सेपरेट अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल द अदर कंपाउंड यू विल सेपरेट इट आउट कंप्लीटली ठीक है तो इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड सिंपल शब्दों में कहूँ तो यू आइसोलेट इट एंड देन यू प्योरीफाई इट आप सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू से गो you will undergo separation techniques. You will let the compound undergo separation technique और फिर से purify कर लोगे ठीक है I hope that is clear to everybody ठीक है अब देखो exactly अब now coming back to the ASH analysis test let's discuss that ठीक है तो बच्चा अगर हम बात करें अब ASH analysis test की तो exactly आप देखोगे ASH analysis test में हम exactly क्या कर रहे होते हैं ASH analysis test में we are analyzing the inorganic components right तो organic components were done and dusted ठीक है
एग्जैक्ट सेपरेशन और प्योरिफिकेशन कैसे होते हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ हाई ग्रेड्स, राइट? अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को अगर मुझे एनालाइज करना है तो मैं सेल लूंगी, मैं सेल को वे करूंगी। अब जैसे कि मैंने अभी पढ़ा जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स बैक, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन अ सेल। तो अभी मतलब 70 से 90% तो वाटर ही होता है इन अ सेल, राइट? तो ये जो सेल का वेट आया ये वेट वेट है, मतलब द सेल हैज वाटर इन इट। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सेल को ना हीट करूंगी। व्हेन आई स्टार्ट हीटिंग इट, तो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में, राइट? सो व्हेन आई हीट इट, ठीक है, हीट इट, तो जो वाटर है वो सारा वाटर वेपर भाप बन के उड़ जाएगा। और अब अगर मैं इसे वे करूंगी, सो व्हाट आई एक्चुअली गेट इज द ड्राई वेट। अब मुझे ड्राई वेट मिला। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ड्राई वेट जो मुझे मिला, ये जो सेल है इसका ड्राई वेट मिला, अब मैं इसे जला दूंगी, आई विल बर्न इट। ठीक है, अब जब मैं इसे बर्न करूंगी तो ड्यूरिंग बर्निंग क्या होता है, कंबशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन बेसिकली अब इसमें ना जो कार्बन होगा आपका, बेसिकली सेल के अंदर हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। तो अब जब वंस आई बर्न इट, एक बार जब मैं बर्न करूंगी तो यानी कंबशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और वो उड़ जाएगा, राइट? तो व्हेन आई बर्न इट, जो कार्बन है वो जल जाएगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक पार्ट बेसिकली निकल गया, सारा कार्बन निकल गया, नाउ व्हाट रिमेन्स इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, राइट? ऐश के फॉर्म में, रैक के फॉर्म में जो बच जाता है, दैट्स द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, देखो, अब एनसीईआरटी फर्दर क्या बोलती है, लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस द आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो वही है कि मतलब एक बार आप आइसोलेट कर लोगे, फिर प्योरीफाई कर लोगे, फिर कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स की मदद से आपको एक लगभग एक अंदाजा लग जाएगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, और लाइक ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इस कंपाउंड का। Now, all the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. जैसे कि मैंने अभी बताया, living organisms के पास inorganic elements और inorganic compounds भी होते हैं. Now, how do you know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. थोड़ा सा different but थोड़ा सा destructive, भयंकर भयानक experiment हमें करना पड़ता है. One weighs a small one weighs a small amount of living tissue. Um, yeah. तो देखो, अगेन ऐश एनालिसिस टेस्ट ही दे रखा है, so let's just read it once, just give me a moment. Okay. One weighs a small amount of living tissue, तो आप क्या करते हो बच्चों, you weigh a small amount of living tissue. आप living tissue को weigh करते हो, ठीक है? Let's say a leaf or a liver, this is called the wet weight. अभी आप जब living tissue को weight करोगे, living cell को weigh करोगे, तो इसमें water भी होगा, 70 से 90% तो water ही है, so this is called the wet weight, and then you dry it. ठीक है, फिर आप क्या करते हो, इसे heat करते हो, heat करते हो तो सारा water उड़ जाता है, you dry it, all the water evaporates. Now the remaining material will give you the dry weight. अब इस dry weight को क्या करोगे now? ना अभी अगर आप इस सेल को पूरी तरीके से जला दोगे ना, सेल या टिश्यू को पूरी तरीके से जला दोगे, if it's fully burned, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form, carbon dioxide and water vapor. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंबशन पे, जब कंबशन होता है, when these carbon and hydrogen atoms, when they react with oxygen, they form carbon dioxide and water vapor. और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश. अब जो बचता है उसको हम ऐश बोलते हैं. दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. इस ऐश में बचा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है. इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, एक्सेट्रा आर आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि बचा सल्फेट हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फेट हो गया, जैसे कि फॉस्फेट हो गया, PO4 3-, ठीक है? ये सारे कंपोनेंट्स भी हमें एक्चुअली में नजर आते हैं इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. देयरफॉर इसलिए हम कहते हैं elemental analysis gives us the elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds give us the idea of the kind of organic and inorganic constituents. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक साइड में टेबल दे रखी है, वहाँ पे एक एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं. एलिमेंट्स की क्या क्या कॉम्पोजिशन होती है एक लिविंग टिश्यू में, वो बताते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं एक लिविंग टिश्यू में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, all of these compounds like sodium chloride, calcium carbonate, phosphate, sulfate, all of these compounds are actually present in a living tissue. I hope that is clear to everybody. Okay, इतना आपको समझ आया? Just give me a moment. Yeah. हाँ देखो, अच्छा एनसीईआरटी ने, आई एम नॉट मिस्टेकन, just give me a moment. एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक लाइन मेंशन करते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई एडेड इट हियर. ओके, ऑल राइट. देखो एनसीईआरटी ना, let me just give me a moment. I'm sure I must have had it somewhere. पता नहीं यार कहाँ मेंशन किया था मैंने. ओके, आया. ओके, हियर इट है.
अब ये एकदम एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल के फर्स्ट पैराग्राफ जो दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें मेंशन है बच्चा। और एनसीईआरटी बोलती है कि यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। एक्चुअली में देखो बेसिकली कंपेयर करिए कॉम्पोजिशन के, काफ़ी देखो चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। जैसे you have learned in chemistry how elemental analysis is performed। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैसे हम एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं, कौन सा एलिमेंट है। सॉल्ट एनालिसिस वगैरह भी, सॉल्ट एनालिसिस में हम पढ़ते हैं ना कि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट है, इसमें ये कंपाउंड है, वो कंपाउंड है। तो एलिमेंटल एनालिसिस करना कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री में सीखते हैं। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several others and their respective content per unit mass of a living tissue। ठीक है। और अगर हम ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट करें एक प्लांट टिश्यू पे, हम ऐसा ही सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट एक प्लांट टिश्यू पे करें बच्चा, या फिर हम एक ऐसा सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट एक एनिमल टिश्यू, एक माइक्रोब की स्लरी जब हम बनाते हैं उस पे करें, और जब हम एनालाइज करें तो हमें कई सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है। CHON कॉन बेसिकली ये मेजर एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी में एक्चुअली प्रेजेंट है। फिर एनसीईआरटी बोलती है, इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। अगर हम ऐसा सेम एनालिसिस अर्थ क्रस्ट एक एक पीस एक टुकड़ा लें अर्थ के क्रस्ट का, और अगर हम सेम एनालिसिस उस पर करें तो हमें ऐसी सिमिलर सी लिस्ट मिलती है, यानी उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो फिर अगर फिर सवाल उठता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट। फिर इन दोनों लिस्ट में फ़र्क क्या है? हाँ, फ़र्क है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बोलूँ तो नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड, बट रिलेटिव टर्म्स में बोलो, एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो एब्सोल्यूट में दोनों में कार्बन है, दोनों में हाइड्रोजन भी है, दोनों में ऑक्सीजन की अबंडेंस भी है, दोनों में सारे एलिमेंट्स हैं मोर और लेस। ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, पर अगर मैं रिलेट करूँ रिलेटिव टर्म्स में डिफरेंसेस डू अराइज। ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ्स क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तभी तो मैंने बोला एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो कोई डिफरेंसेस आप ऐसे कोई अंतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ्स क्रस्ट में वो सभी के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक लिविंग टिश्यू में। However, a closer examination revealed that the relative abundance of carbon, hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in the Earth's crust। लेकिन अगर आप बहुत गौर से, अगर एक क्लोजर एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक से अगर आप एग्जामिन करते हो तो आपको पता चलता है कि जो अबंडेंस है, जो परसेंटेज अबंडेंस है कार्बन की, जो अबंडेंस है कार्बन की या हाइड्रोजन की, जो अबंडेंस है कार्बन की या हाइड्रोजन की with respect to other elements, that's relatively higher in living organisms than in the earth's crust। ठीक है। जैसे कि just give me a moment, I'm sure I added it here। अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन को देखूँ, कार्बन और हाइड्रोजन को इन दोनों को हाईलाइट करती हूँ, तो इसने बोला कि वैसे तो एज सच कोई इतना डिफरेंस है नहीं। ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस मोरलेस सेम है, बट रिलेटिव अबंडेंस अगर रिलेट करो तो जो परसेंटेज अबंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है, दैट्स हायर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन इन द अर्थ crust। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा है देन इन द अर्थ crust। सो दिस इज द परसेंटेज वेट ऑफ द अर्थ crust एंड दिस इज द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो एक डिमार्केशन करने दो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ऐसा एक डिमार्केशन हम कर सकते हैं। अर्थ crust में हाइड्रोजन की परसेंटेज है 0.14, whereas ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन की परसेंटेज है 9.5। विच इज़ व्हाट एनसीईआरटी सेड कि जो हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज अबंडेंस है ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ crust। ऐसी कार्बन की परसेंटेज अर्थ crust में हमें मिलती है 0.03, राइट। बट यहीं पे अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो तो इट्स मैसिव 18.5। आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। ठीक है। अब अगर बात करें वैल्यूज याद करनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करनी है, सच नहीं पूछी जाती है, बट यू काइंड ऑफ गेट द जिस्ट ऑफ इट। जैसे हमने इसकी याद कर ली, इसका हमें एक आइडिया लग गया कि बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी अर्थ crust। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन अर्थ crust में भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट है और ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल है। ठीक है। इट्स 46.6% इन द अर्थ crust एंड इट्स 65% इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे नाइट, तो मोस्ट अबंडेंट की अगर बात करूँ, एक मोस्ट अबंडेंट का रेशियो निकालो एक लीस्ट अबंडेंट का, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द अर्थ crust अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन हो जाएगा विच इज़ 46.6%। ठीक है। और लीस्ट अबंडेंट तो लीस्ट एज सच यहाँ पे दे नहीं रखा, बट नाइट्रोजन के लिए वेरी लिटिल देव मेंशन, वेरी वेरी लिटिल। ठीक है। और यदि ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूँ तो मोस्ट अबंडेंट केमिकल अगेन ऑक्सीजन 65.0, और सिलिकॉन जो है वो लीस्ट अबंडेंट है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आ रहा है, राइट। अब अच्छा बच्चा, अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं व्हिच इज मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है हम सबने पढ़ा था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। आई एम नॉट वेरी श्योर कितने बच्चों को याद भी होगा, बट अगेन इफ यू आर एब्सोल्युटली इन सिंक विद द सीरीज आई एम श्योर यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद इट। अब देखो अगर मैं बच्चा बात करूँ मेटाबॉलिज्म की है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन योर बॉडी
within each cell, right? So all the reactions which are occurring throughout the body within each cell that kind of provides the body with energy, that is referred to as metabolism. और हम एनसीईआरटी में डिफाइन भी कैसे करते हैं? Sum total of all the catabolic and anabolic reactions, that is known as metabolism, and all the products or substances in metabolic reaction which are involved, a typo here, all the products and substances which are kind of involved in metabolic reactions are referred as metabolites. To be more precise with you, any substance which is produced or used, which is produced या तो जो बन रहा है या जो इस्तेमाल किया जा रहा है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो मेटाबोलाइट ही कहलाता है। ठीक है, अब मेटाबोलाइट्स भी बचा दो तरीके के होते हैं, वी हैव प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड देन वी हैव द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब बचा अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दीज मेटाबोलाइट्स दे डायरेक्टली कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड आर क्रूशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेसिकली ये वो मेटाबोलाइट्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, एक ऑर्गेनिज्म के, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। सो दीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट है, डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस में, एंड दे आर काइंड ऑफ वेरी क्रूशियल फॉर लिविंग, राइट? वी कैन नॉट रियली लिव विदाउट एंड वी कैन नॉट रियली डू विदाउट दैम। पर यहीं पे अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स are those chemicals या those compounds which are, अगर देखो ह्यूमन के with respect to मत सोचो, बायोमोलिक्यूल्स molecules present in living organisms, right? हमारे अलावा just change your lenses, हमारे अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए, फंगस हो गई, कई सारे माइक्रोब्स हो गए। सो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना, दे बेसिकली फॉर्म्ड और दे आर बेसिकली फाउंड इन द बॉडी ऑफ सम प्लांट, इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, विच इज़ काइंड ऑफ नॉट एसेंशियल फॉर देम। तो उनके लिए ऐसे जितना ज़रूरी नहीं है, मतलब डायरेक्टली किसी उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हैम्पर या अफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर बेसिकली दोज which are not directly involved in normal growth, in normal development and reproduction. कहीं तो एडिशनल बेनिफिट कोई ना कोई दे रहा होगा, बट एज सच अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके जो फंक्शन है ना कहीं अननोन ही है। सो दे हैव अननोन फंक्शंस विद इन देम। ठीक है, कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस आज भी अननोन है। तो अब अगर और हमें ये भी पता है कि अगर ये कोई डायरेक्ट रोल प्ले कर नहीं रहा है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो हमने सोचा हम इसको कमर्शलाइज ही कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स बीइंग वेरी सेल्फिश, राइट? तो हमने कहीं ना कहीं इन्हें कमर्शलाइज करने की कोशिश की और हमने इन्हें कमर्शलाइज किया एंड हेंस वी यूटिलाइज देम फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब एक्चुअली बताऊँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, on the basis of the structure of these secondary metabolites, हम इन secondary metabolites को 5 major classes में divide करते हैं। Although that's out of NCERT, मैं just बता दे रही हूँ for the sake of it। हम actually में इन secondary metabolites को on the basis of this structure, on the basis of the structure of the compounds, we divide them into 5 major classes। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास terpenoids, just let me write it down for you। एक क्लास होती है हमारे पास terpenoids, फिर हमारे पास एक क्लास होती है phenolics की, एक होती है terpenoids, एक होती है phenolics, फिर बच्चा हमारे पास होते हैं alkaloids, terpenoids, phenolics, alkaloids के बाद बच्चा अपने पास होते हैं polyketides। ठीक है, एक होते हैं terpenoids, phenolics, alkaloids, polyketides and then we have carbohydrates। ठीक है, carbohydrates, ये 5 classes होती हैं, again not in NCERT, so we'll refrain ourselves from discussing further। ठीक है, अब चलो क्विकली एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, द मोस्ट exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms and determining their structure and if possible synthesizing them। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट केमिस्ट्री का यही है कि वो वी कैन आइसोलेट थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके स्ट्रक्चर को पता लगा सकते हैं, उन्हें बना भी सकते हैं शायद लैब में। ठीक है, if one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugars, etc। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम एक लिस्ट बनाए बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है, तो अगर एक सेल में से मान लो हम यही कंपाउंड्स को आइसोलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी बायोमोलिक्यूल्स की। उस लिस्ट में होंगे कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, एक्सेट्रा। For reasons that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolites। ठीक है, हम इन बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट भी बुला सकते हैं। ठीक है, in animal tissue, one notices the presence of all such categories of compounds. These are primary metabolites। ठीक है, however, when one analyzes, ठीक है, अब एनसीईआरटी बोलती है प्लांट एनिमल टिश्यू में you notice the presence of all such categories of compounds which are given in figure 9.1। अब figure 9.1 अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो figure 9.1 में आपको कई सारे बेसिकली डायग्राम्स दे रखे हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
अब एनसीईआरटी फिगर 9.1 मेंशन करिए, so let me just open up एनसीईआरटी ओनली। अब ये देखो फिगर 9.1 में आपको कई सारे कंपाउंड, देखो शुगर्स यानी अमीनो एसिड्स दे रखे हैं, कई सारे फैट्स और ऑयल्स, लिपिड्स दे रखे हैं, nitrogenous bases, nucleosides, nucleotides. So they've kind of given you all the compounds, important compounds which are present in a living tissue. और जब आप इन टिश्यूज इन कंपाउंड्स की बात करते हो तो ये बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट है, यानी ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन आवर नॉर्मल ग्रोथ इन डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन को। तो हम इन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। बट व्हेन यू एनालाइज प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, लेकिन जब आप प्लांट, फंगल या माइक्रोबियल सेल की बात करते हो, यू वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आपको हजारों ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जिनका एक्चुअली में पर से स्पेसिफिक फंक्शन क्या है वो हमें नहीं पता, जैसे कि एल्कलॉइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, टर्पेल्स, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कई सारे ड्रग्स। एंड व्हेन आई से ड्रग्स, आई डू नॉट रियली मीन ड्रग drugs are actually nothing but medicines when taken in wrong proportion, and when जब उनका misuse, when you start misusing them, ठीक है, in a way that kind of impacts your body, that's when they are referred to as drugs, ठीक है। अब एक्चुअली ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रही थी, जब आप एनालाइज करोगे एक प्लांट को, फंगल को या फंगस सेल को या माइक्रोब्स के सेल को, तो आपको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा हजारों ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे कि अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर्स, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम, स्पाइसेस, और ये सब क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, we do not at the moment understand the role and functions of all the secondary metabolites. Although प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के हम सबको पता है कि कितने हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के सारे फंक्शंस पता हैं कि वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, एंड वी कैन नॉट डू विदाउट देम। बट एट द मोमेंट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंड। ऐसा नहीं कि हमें किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन नहीं पता, हमें पता है, बट हमें सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस नहीं पता इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, और हमें ऐसा उनका कोई नोन रोल नहीं है, और ऐसा कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम कहीं ना कहीं फिर उसे कमर्शलाइज ही कर लेते हैं, एंड दे आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। तो जैसे कि रबर हो गया, ड्रग्स हो गया, स्पाइसेस हो गए, सेंस हो गए, रेजिन, टैनिन्स, पिगमेंट्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्लांट्स को एज सच डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहे, एडिशनल बेनिफिट्स डेफिनेटली दे रहे हैं, बट उसकी फिजियोलॉजी में एज सच कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, और इसे हम कमर्शलाइज करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग ह्यूमंस, राइट? व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अस? Like some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapters and years, you'll learn more about this. कुछ secondary metabolites की तो बहुत ecological importance भी होती है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ table लिखा है। Now this table, my dear friends, is absolutely very, very important. Trust me, make a note of it. There's no point cribbing, crying, because nobody's gonna pay attention. Nobody's gonna pay heed to your cryings and your venting. You have to learn it, means you have to learn it. There's no two ways about it. We've all done it. अब देखो, अब यहाँ ही बात आ जाती है। अब देखो, जो बात देखो, conceptual clarity जितनी हम दे पा रहे हैं देख के, ठीक है, पर examples of facts and data has to be learned. So there's no other way, right? There's no point crying about it. अब देखो, अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आ जाते हैं कुछ पिगमेंट, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, ठीक है। अब देखो पिगमेंट्स, एक्चुअली देखो कहाँ पिगमेंट्स आपने कहाँ पढ़े हैं? पिगमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है, राइट? जब हम एल्गी भी पढ़ते हैं, एल्गी में क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी सब हम पढ़ते हैं कि उनमें होते हैं क्लोरोफिल, दे हैव कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोफिल्स। फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में दे हैव क्लोरोफिल, उसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोफिल्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं। एल्कलॉइड्स में हम पढ़ते हैं मॉर्फिन या कोरीन। मॉर्फिन के बारे में हम श्योर हम सब पढ़ते हैं। अगर आपने मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का लेक्चर अटेंड किया है तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। मॉर्फिन जब मैं पढ़ते हैं, मॉर्फिन इज बेसिकली इट्स अ ड्रग, राइट? तो हम ड्रग्स जब हम डिफाइन करते हैं, ड्रग्स में हम कैटेगराइज करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स, ओपिएट नार्कोटिक्स। तो ओपिएट नार्कोटिक्स के अंदर एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ मॉर्फिन। मैं नहीं पढ़ाती, मीन एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम पढ़ाते हैं। मॉर्फिन इज बेसिकली लाइक एन एनाल्जेसिक, इट्स अ वेरी पावरफुल एनाल्जेसिक। तो पेन रिलीवर, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर की तरह काम करता है, राइट? मॉर्फिन इसका ही एक डायसिटाइलेटेड मॉर्फिन को हम हीरोइन भी बोलते हैं। फिर कोडीन हो गए, सारे अल्कलॉइड्स है। टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स में हमारे पास मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स आ गए। कई सारे एसेंशियल ऑयल आपने सुना होगा ना, हम जोहोबा ऑयल हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, ऑल ऑफ दीज ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो हम अपने फेस पे लगाते हैं, और लिप ऑयल्स आने लगे हैं। दीज आर ऑल एसेंशियल ऑयल्स, राइट? जैस्मिन ऑयल, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो सारे एसेंशियल ऑयल। फिर टॉक्सिन जैसे कि एवरिन, रिसिन, ठीक है, एवरिन, रिसिन, ऑल ऑफ दीज आर टॉक्सिन, ठीक है। लैक्टेंस की बात करूँ, कॉनकैनावैलिन ए, ठीक है, कॉनकैनावैलिन ए। नाउ यू हैव टू, तो देखो मैं एक एक का फंक्शन नहीं बताऊंगी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ए इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, टू इट डज नॉट रियली होल्ड एनी रेलेवेंस, व्हिच इज व्हाई इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी।
So what's the point, right? ठीक है, अभी strictly NCERT को refer करते हैं, knowing that it's a crash course, it's a detailed crash course, I do agree, but अगर relevant नहीं है exam के लिए, nobody is gonna ask. All they're gonna be asking you is which of the following is a toxin, ठीक है? तो फिर example दे देंगे heparin, vinblastine, concanavalin A और rubber. तो you'll have to select heparin, right? ऐसे ही lactans में आ गया example concanavalin A. ड्रग्स में आ जाते हैं विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन एक्सेट्रा. विनब्लास्टिन की अगर मैं बात करूँ, अगर सेम एग्जैक्टली जिन बच्चों ने मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का लेक्चर अटेंड किया होगा, वहाँ पे आपने विनब्लास्टिन के बारे में भी सुना होगा. विनब्लास्टिन एक्चुअली में इट्स अ क्लिनिकली यूज्ड कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग है बेसिकली विनब्लास्टिन, ठीक है. और प्रिकर्सर भी होता है कई सारे और केमिकल्स का. तो अभी एक पे एंटी कैंसर ड्रग है, कीमोथेरेपीज वगैरह में हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं. इट्स एन एंटी कैंसर ड्रग. तो ये ऑब्टेन होता है एक मेडिसिनल प्लांट से विच इज कैथरांथस रोजियस, ठीक है. जो मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बताती हूँ, उसके बारे में मेंशन करती हूँ, बिकॉज ये 2 जगह मेंशन होता है, ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. फिर लास्ट हमारे पास आ जाते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, उसमें आता है रबर्स, गम्स, सेल्यूलोज. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. सो वंस अगेन, pens up everybody, let's repeat after me so that we understand and learn this better. Okay, let's do this together. Pigments में बचा हमारे पास आ गई कैरोटिनॉइड एंड एंथोसाइनिन. एल्कलॉइड्स में हमारे पास आ गए मॉर्फिन एंड कोडीन. टर्पनॉइड्स में हमारे पास आ गए मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स. एसेंशियल ऑयल्स में हमारे पास आ गए लेमन ग्रास ऑयल. टॉक्सिन्स में हमारे पास आ गए एवरिन एंड रिशन. लैक्टेंस में हमारे पास बचा आ गया कॉनकैनावैलिन ए. ड्रग्स में हमारे पास आ गए विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन. और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में हमारे पास आ गए रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू carbohydrates. I hope that is clear to everybody. Let's move on to carbohydrates, everybody. ठीक है, तो अब बचा लेट्स नाउ कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले काम करते हैं, लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड एंड लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक द बेसिक ओवरव्यू ऑफ व्हाट इट एक्चुअली इज, राइट. सो लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर. अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिफाइन किया एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट. कार्बोहाइड्रेट्स वर डिफाइंड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है. अब ये डेफिनेशन कितनी सूटेबल थी या कितनी सूटेबल नहीं थी वो तो आप ही बताना इन अ वाइल, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने डिफाइन किया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है. और इनके लिए इनको क्लासीफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक जनरल या एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया, CnH2O होल n, राइट. वेयर इन n इज़ एन इंटीजर, राइट. तो अब मान लो जैसे हम सबको वेर ऑल वेल वर्स्ड विद द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का हम सबको पता है C6H12O6. तो लेट्स से अगर n इंटीजर और n की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूँ, सो व्हाट डू आई गेट? C6H2O होल 6, राइट. So if I were to expand it further और मैं इसे further expand करके लिखूँ, so I get C6H2 हो जाएगा O6, C6H12O6, राइट. C6H12O6, ठीक है. तो ये जो मुझे स्ट्रक्चर मिला, ये क्या है? ये मुझे किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला? ग्लूकोज का. ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो उसके हिसाब से तो आप बोलोगे कि मैम या आइडियली दिस डेफिनेशन मेक्स परफेक्ट सेंस, बट थिंग्स वर नॉट सो सिंपल एंड सो ईजी, राइट. अब देखो, अब मैं क्या करूँगी ना, आई विल लेट्स से मैं अगर n की वैल्यू लेट्स से 2 पुट करती हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, सो लेट्स सी व्हाट आई गेट. अगर लेट्स से लेट मी चूज द साइज, ओके. अब मान लो अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ, सो आई गेट, देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? CnH2O होल n, राइट. और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, सो लेट्स सी व्हाट आई गेट. C2H2O होल 2, ठीक है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? CH3COOH. क्या ये जो फॉर्मूला है एस्टिक एसिड का, ये भी इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? क्या ये जो एस्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? देखो यहाँ पे 2 कार्बन आटम्स, तो 2 कार्बन आटम्स, 2 2 4 हाइड्रोजन आटम्स, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन आटम, 2 ऑक्सीजन आटम, 2 ऑक्सीजन आटम. तो कहीं ना कहीं ये ना एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला था, जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बल्कि और भी कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल था. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, 2 कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स, राइट. तो कहीं ना कहीं फिर हमने बोला कि वी हैव टू कम अप विद अ मोर एप्ट एंड मोर सूटेबल डेफिनेशन, ठीक है. वी कांट जस्ट से दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है. दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट्स डेफिनेटली राइट, वी आर नॉट डिस्कार्डिंग इट, बट वो सही डेफिनेशन तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है. सो वी केम अप विद अ मोर बेटर डेफिनेशन एज एन, ठीक है. हमने इसको और थोड़ा साइंटिफिकली डिफाइन किया एज ऑप्टिकली एक्टिव. अब मान लो ऑप्टिकली एक्टिव ये हम डिफाइन भी करते हैं जब हम केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, राइट. और केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स मुझे पढ़ाना है आपको अभी, वी हैव नॉट डन दैट, राइट. सो केमिस्ट्री में जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, यू विल सी द डेफिनेशन, एंड इफ यू हैव योर NCERTs, प्लीज पिक देम अप एंड जस्ट you'll be able to see a line in it. ये केमिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली. वहाँ पे आइडियाज एक लाइन लिखी होती है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव,
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑप्टिकली एक्टिव। अब मान लो ऑप्टिकली एक्टिव हटाए ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें पता है ना, कुछ कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड राइट को या तो लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं, राइट में रोटेट कर देते हैं, तो दैट डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, ठीक है। बट अगर मान लो ऑप्टिकल एक्टिविटी को हटा भी दिया जाए विदाउट गेटिंग इन वे टू मच इनटू केमिस्ट्री, अगर हम सुपरफिशियली भी बोलें, सो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिफाइन किया एज पॉलीहाइड्रोक्सी, दे वर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। 1 सेकेंड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। अब पॉली मीन्स क्या होता है बच्चा, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब हो गया OH ग्रुप, एल्डिहाइड्स मतलब जिनके पास एक CHO फंक्शनल ग्रुप है, और कीटोन्स मतलब जिनके पास C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मतलब दो विच हैव द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मतलब जिनके पास एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, राइट। अब मैं अगर इनको फर्दर डिफाइन करूँ, इफ आई वो टू डिफाइन फर्दर, ठीक है, सी होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी पॉली मीन्स मैनी, इनमें कई सारे OH ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और कई सारे OH ग्रुप्स के अलावा या तो इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब मान लो अगर इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, लेट्स से इफ दे हैव द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसके में मोमेंट इसको भी छोटा कर देते हैं, काम करते हैं, लेट मी जस्ट पुट इट हियर, ठीक है। अब मानो अगर इनमें लेट्स से इनमें अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, सो हम इनको बोलते हैं एल्डोसिस, ठीक है। और अगर इनमें लेट्स से कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम इन्हें बोलते हैं कीटोसिस, अगर इनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है देन हम इन्हें बोलते हैं कीटोसिस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। एल्डोसिस एंड कीटोसिस रिस्पेक्टिवली। अब मैं क्लासीफाई करती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है उस बेसिस पे वी हैव 3 मेजर कैटेगरीज, वी हैव 3 मेन टाइप्स, वी हैव मोनोसैकेराइड्स, वी हैव ओलिगोसैकेराइड्स एंड देन वी हैव पॉलीसैकेराइड्स, राइट। So on the basis of number of monosaccharides, on the basis of on the basis of molecular size, we have monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. अब मोनो मतलब होता है 1, सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गई, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड्स ये जो नाम है ये आया है एक वर्ड सैकरम से, राइट, सैकरम, यह है एक वर्ड सैकरम से, और सैकरम का मतलब होता है शुगर, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो रेफर टू एज सैकेराइड्स और शुगर्स, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट कैटेगरी, मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब होता है 1 और सैकेराइड एज आई जस्ट सेड मीन्स शुगर, राइट। सो एक शुगर, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, एक शुगर यानी बेसिकली मोनोसैकेराइड्स, द नेम काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट, ये एक सिंगल यूनिट है, राइट, दिस इज अ सिंगल यूनिट, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर जस्ट वन सिंगल यूनिट, राइट, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, दे कैन नॉट रियली बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ये और फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, राइट, एंड देयर आर सिंपलेस्ट टाइप्स, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ही होता है। अब देखो भले ही वो एक सिंगल यूनिट है, बट उसका साइज तो वेरी कर सकता है, जस्ट लाइक मैं इसे एक पर्ल की एनालॉजी से समझाती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय टीचर्स, ओके। तो अब मैं इसे एक पर्ल की एनालॉजी समझाती हूँ। व्हाट यू कैन सी राइट ऑन योर स्क्रीन आर डिफरेंट साइजेस ऑफ पर्ल्स, राइट, दिस इज अ पर्ल साइजिंग चार्ट दैट आई प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। अब अगर आप इसे ध्यान से नोटिस करो एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, देखो यहाँ पे अलग अलग साइज़ की पर्ल्स हैं, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, तो ये एक सिंगल पर्ल ही ना, बट इसका साइज़ वेरी कर रहा है। इन द सेम वे मोनोसैकेराइड्स होती है तो सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, दे आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल। इससे ज़्यादा सिंपल शुगर्स में आप इसे तोड़ नहीं सकते, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है, एक सिंगल यूनिट है, तो इसका साइज़ तो वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मिलीमीटर का पर्ल भी है, 8 मिलीमीटर का पर्ल भी है, 11 मिलीमीटर है, तीनों के तीनों सिंगल पर्ल ही, बट इनका साइज़ तो वेरी कर रहा है। इन द सेम वे मोनोसैकेराइड्स होती एक सिंगल यूनिट ही है, एक सिंगल सिंपलेस्ट यूनिट है, बट इट कैन नॉट एक्चुअली भी हाइड्रोलाइज फर्दर, इसे और में फर्दर सिंपल शुगर्स में नहीं तोड़ सकती, राइट, ठीक है। बट इसमें जो कार्बन नंबर है, द कार्बन नंबर माइट वेरी, ठीक है, इसका साइज़ तो वेरी कर सकता है ना। मान लो जैसे कोई एक मोनोसैकेराइड उसमें से 3 कार्बन एटम्स है तो मैं इसे ट्रायोस शुगर बोलूँगी, कोई एक मोनोसैकेराइड है जिसमें 4 कार्बन एटम्स है मैं इसे टेट्रोसिस बोलूँगी, कोई एक मोनोसैकेराइड है जिसमें 5 कार्बन एटम्स है मैं इसे पेंटोसिस, 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्सोसिस, 7 कार्बन एटम्स के लिए हेप्टोसिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूजुअली पेंटोसिस और हेक्सोसिस रिलेटिवली दे आर वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम उसे बोलते हैं ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब फिर मोनोसैकेराइड्स के जिसमें मैं बोला, अगर मान लो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो गया एल्डोस, और अगर इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये हो गया कीटोस, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको ना फर्दर सिंपली आपको क्लासीफाई करके बताती हूँ। मानो लेट्स जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर मान लो इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब लेट्स से इसमें लेट्स से 3 कार्बन एटम्स हैं,
वी जस्ट स्टडी राइट। इसमें 3 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या बोलते हैं, ट्रायोस, ठीक है। और 3 कार्बन एटम्स है अलॉन्ग विद एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो मैं इसे बोल दूँगी एल्डो ट्रायोस। दिस विल बी रेफर टू एज एल्डो ट्रायोस, ठीक है। एक एल्डो ट्रायोस का एग्जाम्पल ऑल्दो एनसीईआरटी में तो नहीं मेंशन होगा, बट इट विल बी ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। एल्डो ट्रायोस का एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, दैट विल बी ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही मानो, अगर मान लो मेरे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और टोटल 4 कार्बन एटम्स है एक सिंगल शुगर में, ठीक है। एक सिंगल शुगर में एक मान लो मेरे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की कार्बन होगी और 3 और कार्बन, यानी टोटल 4 कार्बन एटम्स और एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चा उसको मैं क्या बोलूँगी, उसे मैं बोलूँगी एल्डो टेट्रोस, दैट विल बी रेफर टू एज एल्डो टेट्रोस। एल्डो टेट्रोस को भी एक एग्जाम्पल अगर मेरे दिमाग में आ रहा है तो एरिथ्रोस हो गया, ठीक है। ऐसे हम बात करेंगे एल्डो पेंटोस की, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर टोटल 5 कार्बन एटम्स है मेरे मोनोसैकेराइड में, तो मैं उसे एल्डो पेंटोस बोलूँगी। एल्डो पेंटोस का तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना भी है, विच इज़ राइबोस, ठीक है। राइबोस इज बेसिकली अ शुगर विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन योर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, राइट। उसी से फिर हम डिराइव करते हैं डीऑक्सी राइबोस जो डीएनए की शुगर होती है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो और टोटल 6 कार्बन एटम्स हो, तो मैं से क्या बोलूँगी, एल्डो हेक्सोस। एल्डो हेक्सोस की तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हो गया ग्लूकोज, हो गया वी हैव मैनोस, ग्लूकोज, मैनोस, गैलेक्टोज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली एल्डो हेक्सोसिस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब मानो मैं इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन लेके आती हूँ, जस्ट ऐड ऑन सम मोर थिंग्स टू इट, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, लेट मी जस्ट ऐड ऑन अ फ्यू मोर थिंग्स। अब देखो, अब मान लो लेट्स से अगर मेरे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और 3 कार्बन एटम्स है टोटल, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, दैट विल बी रेफर टू एज कीटो ट्रायोस, ठीक है। कीटो ट्रायोस के भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑल्दो नेसेसरली यू डू नॉट रियली हैव टू राइट इट डाउन। जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तो आप जाके आगे देखोगे भी, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आगे है भी सिलेबस में, ठीक है, ठीक है। कीटो ट्रायोस, अगर मान लो मेरे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और टोटल 4 कार्बन एटम्स है, दैट विल बी रेफर टू एज कीटो टेट्रोस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, राइट। अब ऐसे कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस तो हमारे सिलेबस में है और हमें पढ़ना भी है। अगर मान लो मेरे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, टोटल 6 कार्बन एटम्स है मेरे मोनोसैकेराइड में, दैट विल बी रेफर टू एज कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं दे सकती हूँ, दैट विल बी फ्रक्टोस। कीटो हेक्सोस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रक्टोस हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अभी हम सब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। हमारे पास मोनोसैकेराइड, वी हैव ओलिगोसैकेराइड एंड देन वी हैव पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स हो गया, ओलिगो। अब देखो मैं ओलिगोसैकेराइड की बात करूँ तो ओलिगोसैकेराइड बेसिकली, ओलिगो मतलब होता है फ्यू में भी, और सैकेराइड मतलब होता है शुगर। फ्यू मतलब ये 2 से लेके 9, कभी कहीं कहीं लिखा होता है 2 से लेके 10, बट मोर टेक्निकली 2 से लेके 9, 2 से लेके 10, वन इन द सेम थिंग, इट्स ऑलवेज रिपीट इन बायोलॉजी, राइट, ठीक है। सो ओलिगोसैकेराइड्स वो होती हैं, अब मुझसे मोनोसैकेराइड्स दे वर जस्ट अ सिंगल यूनिट, राइट, एक सिंगल यूनिट थी। अब बट मान लो 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड जब जुड़ती जाती हैं, 2 से लेके 9 अगर मोनोसैकेराइड जुड़ती जा रही हैं, दे विल फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। लेते हैं अगर 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ी, दे विल फॉर्म डाइसैकेराइड। अगर 3 मोनोसैकेराइड्स जुड़ी, दे विल फॉर्म ट्राइसैकेराइड। अगर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ी, ठीक है, दे विल फॉर्म टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 9 तक, ठीक है। 2 से लेके 9, 2 से लेके 10 तक, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ, मान लो अगर मेरे पास 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल के, ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ के मेरे पास एक डाइसैकेराइड बना रही है, तो आई कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन द अदर वे राउंड, राइट। आई कैन डिफाइन इट एज डाइसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिन्हें जब मैं तोड़ूंगी पानी की प्रेजेंस में, तो मुझे ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगी। ऑफकोर्स अगर ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल के डाइसैकेराइड बना रही है, तो जब इस डाइसैकेराइड को मैं तोड़ूंगी वाटर की प्रेजेंस में, तो मुझे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ही तो मिलेंगी। तो आई कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज डाइसैकेराइड्स आर बेसिकली दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इन द सेम वे, जैसे कि डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा सुक्रोज, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सुक्रोज हो गया हमारे पास, ठीक है। सुक्रोज का बच्चा जब मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मी 1 molecule of glucose. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मी 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, ठीक है। और अभी हमें पता है, अभी हमने देखा, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज क्या होता है, एल्डो हेक्सोस, और फ्रक्टोज क्या होता है, कीटो हेक्सोस, ठीक है। ऐसे ट्राइसैकेराइड्स की बात करूँ, ट्राइसैकेराइड्स वो होती हैं बेसिकली जो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से जुड़ के बनी होती है। 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म ट्राइसैकेराइड। पर ट्राइसैकेराइड्स को ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिल के बनी है, तो ट्राइसैकेराइड्स का जब मैं हाइड्रोलिसिस करूँगी, दे विल यील्ड मी 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है। ट्राइसैकेराइड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इट्स रैफिनोज, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने अगर, मतलब मैंने तो ऑफकोर्स एज ऑफ नाउ वी नॉट डन द बायोमोलिक्यूल दैट इज इन केमिस्ट्री, ठीक है। बट वहाँ पे आप देखोगे ट्राइसैकेराइड में भी ना एक एग्जाम्पल मेंशन है विच इज रैफिनोज, ठीक है।
रैफिनोस एक ट्राइसैकेराइड है जिसको जब मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ यानी वाटर की प्रेजेंस में जब मैं इसे तोड़ती हूँ तो मुझे ये 3 यूनिट्स देता है. दिस यील्ड्स मी 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. कौन सी हैं वो 3 यूनिट्स? इट यील्ड्स मी 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, 1 यूनिट फ्रक्टोज और 1 यूनिट गैलेक्टोज. सो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. इट यील्ड्स मी 3 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. एक हो गया ग्लूकोज, एक हो गया फ्रक्टोज, एक हो गया गैलेक्टोज. ठीक है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर आ जाता है अपने पास पॉलीसैकेराइड्स. पॉली मीन्स होता है मैनी. बच्चा पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर. ठीक है. अगेन ठीक है. सो अब मान लो मेरे पास अगर 2 से 10 से अब मान लो मेरे पास 10 से भी ज़्यादा अगर मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ती जा रही हैं 10 से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ती जा रही हैं. 10 तो मैंने बस एक साइंटिफिकली कह दिया हज़ारों मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ के पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं. Thousands and thousands of monosaccharide units come together and they combine together and form polysaccharides. Polysaccharides के भी कई सारे एग्जाम्पल्स है. पॉलीसैकेराइड्स में एग्जाम्पल हो गया जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया. इसमें आप देखोगे thousands of monosaccharide units join together and form polysaccharides. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अच्छा, फिर मैं क्या करती हूँ ना, फिर एक और क्लासिफिकेशन है बिकॉज मैंने इनको कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स बोला. टू बी मोर प्रिसाइज दैट टर्म इज मोर एप्ट फॉर मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर रेफर टू एज शुगर्स. ठीक है. शुगर की बात अगर मैं करूँ बच्चों, शुगर से मेरा क्या मतलब है? मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ना, जनरली दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्रिस्टल लाइक होता है. हमारे घर में भी जो शुगर होती है यूजुअली द वन दैट वी ईट, राइट. ठीक है. वो जो शुगर होती है यूजुअली क्रिस्टल्स होते हैं उसके, तो क्रिस्टलाइन होती है शुगर. दे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे स्वीट इन टेस्ट, दे सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है. सो शुगर्स को अगर मैं डिफाइन करना तो शुगर्स की कैटेगरी में मेजरली हमारे पास मोनोसैकेराइड तो ओलिगोसैकेराइड आता है. अगर मैं बात करूँ पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड्स दे क्लासिफाइड एज नॉन शुगर्स. बचा polysaccharides, they are non-sugars. Why? For obvious reason. पहली बात तो they are not crystalline, they are not crystalline solids. ये तो एक long chain है. ये crystalline solids नहीं होते. Also they are not sweet in taste, they are not soluble in water, all the other reasons. ठीक है. तो polysaccharides मेरे पास क्या हो गए? They are non-sugars. अब बिकॉज मैंने मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स को शुगर्स की कैटेगरी में डाला. शुगर्स मेरे पास फर्दर 2 तरीके की हो सकते हैं. ये मैं क्यों बता रही हूँ कि आपको इसका रेलेवेंस आगे जाके पता चलेगा जब हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, जब हम पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे. यहाँ पे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग नेचर आता है, राइट. तो अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, so let me just define it for all of you. Okay, just give me a moment. Let me just erase this portion. Okay, let me erase all of this and there you go. Alright, so now coming back to the topic, जैसे कि मैं बोल रही थी. हाँ, सो अब हमने बात की शुगर्स की, राइट. तो शुगर्स में मैंने किसको मेजरली क्लासीफाई किया? शुगर्स में मैंने क्लासीफाई किया बेसिकली मोनोसैकेराइड्स प्लस ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है. इसमें भी ओलिगोसैकेराइड में भी एक एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा. ठीक है. जैसे डाइसैकेराइड होती है सुक्रोज, वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है. अब देखो शुगर्स को ना बच्चा मैं फर्दर क्लासीफाई कर सकती हूँ 2 कैटेगरीज. ठीक है. शुगर का फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. वी हैव रिड्यूसिंग शुगर्स. हम आगे पढ़ेंगे, आगे है हमारे बारे में भी ये. ठीक है. और डिटेल में नहीं है बट है एक्चुअली में. सो स्टार्च वगैरह के स्ट्रक्चर इफ दे हैव टू मेक सेंस, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स. ठीक है. अदरवाइज लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है. Trust me, you have not met the right educators, and I have been privileged enough to be associated with some really great teachers who never made me mugged up biology. Of course facts and data have to be not mugged up but has to be remembered in a way. But जो conceptual चीज़ें हैं समझने की, अब बच्चे उसे भी नहीं समझते हैं. then they say biology is boring. I can't help it. Yeah, but अब देखो जैसे कि coming back to the topic, sugars 2 तरीके के होते हैं. we have reducing sugars and then we have non-reducing sugars. ठीक है. reducing sugars हो गई बच्चा, and then we have non-reducing sugars. अब तो name itself kind of gives you a hint. reducing sugars वो होती हैं, पहली बात तो reducing sugars के पास जैसे कि मैंने बोला बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं इनके पास या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा. सो दे reducing sugars they have a free aldehydic और free ketonic group. they have a free aldehydic और free ketonic group. और नॉन रिड्यूसिंग इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएंगे. दे डू नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप. ठीक है. दे डू नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप. अब बिकॉज रिड्यूसिंग शुगर्स के बाद एक फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है. ये क्या करते हैं, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना उन्हें रिड्यूस कर देते हैं. दे रिड्यूस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन. ठीक है. उन्हें रिड्यूस कर देते हैं. अब बिकॉज ये जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं दे डू नॉट रियली हैव अ फ्री एल्डिहाइडिक और फ्री कीटोनिक ग्रुप, सो दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. एक एग्जाम्पल जैसे कि अगर नॉन रिड्यूसिंग का याद रखना हो तो वो रख लो सुक्रोज विच इज अ डाइसैकेराइड. आगे पढ़ेंगे हम इसे. ठीक है. और रिड्यूसिंग में तो हमारे पास सारे आगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऑल ऑफ दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर. ठीक है. अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है. अब मैं अगर बात करूँ एज टू द अरेंजमेंट, हाउ आर दे अरेंज. ठीक है. तो उसके बेसिस पे मैं आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी. सो अगैन ब्लैंक स्लाइड फर्स्ट. ठीक है. ब्लैंक स्लाइड पता है पढ़ाने में मुझे ज़्यादा मज़े आते हैं बट अगैन दिस इज अ क्रैश कोर्स सो आई हैव टू कम विद प्रिपेयर नोट्स, राइट.
ऑलराइट, सो एज आई वाज सेइंग, अब देखो ये जो शुगर्स है ना, फिर आई बात इनके स्ट्रक्चर्स और इनके मोलिकुलर फॉर्मूला डिड्यूस करने की। तो कई सारे साइंटिस्ट आए, कुछ साइंटिस्ट आए जैसे कि लाइक फिशर, ठीक है, फिशर, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट है जैसे कि फिशर का आप नाम सुनोगे, उन्होंने ऐसे लीनियर अरेंजमेंट्स दिए, लीनियर स्पेशल अरेंजमेंट्स दिए कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स के, और उनका सबसे ज़्यादा जो पिलर था वो ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स के एक्चुअली में जो लीनियर स्ट्रक्चर्स थे वो इन्होंने दिए। फिर उसके बाद आप आगे और भी पढ़ोगे विच इज़ हैवर्ट्स प्रोजेक्शन, ठीक है, हैवर्ट्स प्रोजेक्शन। अब हैवर्ट्स प्रोजेक्शन क्यों आए, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। अब बिफोर वी गो इनटू हैवर्ट्स प्रोजेक्शन, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, तो शुगर्स बेसिकली एग्जिस्ट इन फॉर्म, बेसिकली हम उसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे लेट्स से 5 कार्बन आइटम्स है, मिनिमम कितने होने चाहिए, अगर मान लो मैं मोनोसैकेराइड भी बना रही हूँ तो मोनोसैकेराइड में मिनिमम 3 यूनिट्स तो होनी ही चाहिए, 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, ट्रायोज से सिंपलेस्ट और कुछ नहीं होता। उसके बाद उस 3 में भी एक जो बेसिकली या तो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर मान लो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो हम सबको पता है एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, राइट, तो CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो उसे मैं एंड पे लगाऊंगी। इसके बाद मेरे पास 2 कार्बन बची, तो अब मैं क्या करूँगी, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, राइट, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी है तो एक OH से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, और जो रिमेनिंग वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। तो कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से अरेंजमेंट किया, तो मैंने बहुत सुपरफिशियली बता दिया, अभी मैं बताऊंगी हाउ डू यू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐसे करके हम डिड्यूस करेंगे दी स्ट्रेट फॉर्म्स, फिर हमें रिंग फॉर्म्स भी मिलेंगी, हमें पायरानोज रिंग जो पायरान के स्ट्रक्चर से डिराइव होती है, फ्यूरानोज रिंग जो फ्यूरान के स्ट्रक्चर से डिराइव होती है। we'll draw all of these things, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं, पहले कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज बचा क्या है, ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी हेक्सोस शुगर। ग्लूकोज को ना वैसे डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, बट अगेन दैट इन्फॉर्मेशन विल नॉट रियली मेक एनी सेंस हियर, बिकॉज डेक्सट्रोज इज रिलेटेड टू दी ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देता है। सो अगेन अगर डेक्सट्रोज वाला पार्ट स्किप भी कर दिया जाए, सो इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, यानी इसमें जो फंक्शन, इट्स एन एल्डोज शुगर, राइट, एल्डोज शुगर है। उसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी, इट हैज़ मल्टीपल OH ग्रुप्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, हेक्सोस शुगर, टोटल 6 कार्बन आइटम्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करना है, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ इट टुगेदर।
रोटेशन को, ठीक है। अभी तो हम D++ ग्लूकोजेस की ही बात कर रहे हैं, यानी ये जो ग्लूकोजेस हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। उसके बाद आगे और डिस्कस करते हैं, काम करते हैं, लाइक लेट्स जस्ट डिस्कस दिस अ लिटिल मोर, ठीक है। काम करते इसको इरेज करना, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके यार, अनग्रुप कर दो भाई। इसको इरेज करना है, हाँ तो इरेज दिस। Why is it not being erased, yaar? What's happening? 1 second. Give me a moment. Why is it not being erased? I wonder. Just give me a moment. Right here. अब तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा, अनग्रुप और ग्रुप। शिट, I have to crop it. मैं क्रॉप कर दूँगी, काम करूँगी। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो, अब काम करते हैं, इसको आगे और डिस्कस अगर मैं करूँ तो आई वाज सेइंग, हाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अब हमें ऐसे देखा गया या फिर कुछ ऐसे टेस्ट परफॉर्म किए गए तो हमें ये पता चला कि यार इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो, बट एल्डिहाइड ग्रुप ना पूरी तरीके से फ्री नहीं है। जैसे कि मतलब डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ये जो था हमारा कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एल्डिहाइड, ये शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था। और हमें पता है जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो शिफ्ट टेस्ट तो आराम से दे देते हैं, ठीक है। ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप। इसका जो पेंटा एसिटेट होता है, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज दैट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीनो। ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में किया और उसका लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुका है, राइट, ठीक है। वी डन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि हम बेसिकली जो हमारा पेंटा एसिटेट है ग्लूकोज का, वो डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो मतलब कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो फ्री OH ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ना, ये इंटायरली फ्री भी नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है। विच मीन्स अब इससे क्या मतलब हुआ, पूरी तरीके से फ्री नहीं है, इससे क्या मतलब है। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दोबारा बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स है, ठीक है। 6 कार्बन आइटम है, तो मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, ठीक है। अब मान लो ये पहले मैं एल्डिहाइड, ये देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। 3rd कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन राइट में होगा, बस बाकी सब में उसको ऑपोजिट कर दो, OH OH OH। जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, इतना कुछ तो समझ आया। अब हमने देखा कि बच्चे ये जो लास्ट कायरल कार्बन थी ना, ये बहुत चालाक निकली। ये जो लास्ट कायरल कार्बन है, इस पर जो OH ग्रुप है इसको बहुत चुल थी, इसको ज़िंदगी में बहुत चुल थी। तो ये जो हमारी लास्ट कायरल कार्बन है, इसमें जो OH ग्रुप है इसको काफ़ी चुल्लत थी। तो इसने क्या किया, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, उसकी कार्बोनिल कार्बन, इसके जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप पे तो अटैक कर देता है। फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा तो हमें पता है पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होते हैं, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा ना, फंक्शनल ग्रुप पे अटैक कर देगा। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन की जो 2 बॉन्ड थी ऐसे रह गई, ठीक है। ये 2 बॉन्ड्स ऐसे अलग अलग हो गए, अभी 2 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब बिकॉज हमें पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाते थे, एक बॉन्ड के साथ तो बहुत हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये जो कायरल कार्बन का इस OH का जो हाइड्रोजन था ना, इसने बोला कि अरे यार एक काम करता हूँ, इस वाली ऑक्सीजन से जाके चिपक जाता हूँ, तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, मैं थोड़ा देखना, ये स्टोरी फॉर्म में ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ जो कायरल कार्बन था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो ये OH था बेसिकली, जिसका ऑक्सीजन ने बेसिकली इस फंक्शनल ग्रुप पे अटैक किया था, OH ने फंक्शनल ग्रुप पे अटैक किया, फंक्शनल ग्रुप टूट गया एंड ये 2 बॉन्ड्स अलग अलग हो गए। अब ये जो ऑक्सीजन था, ठीक है, ये तो बड़ा अनस्टेबल है, तो इसकी हेल्प में आता है इसी ग्रुप का हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे आता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है OH, ठीक है, इसके साथ OH बॉन्ड बना लेता है। अब देखो एक्जैक्टली क्या होगा, तो ये OH बॉन्ड बन गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रफा दफा करो, तो ये हाइड्रोजन तो ऊपर चला गया है, ठीक है, उस ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा ये ऑक्सीजन, राइट, जिसने एक्चुअली अटैक किया था। तो ये ऑक्सीजन क्या है ना, ये कॉमनली शेयर होगा, देखना दोनों में। ये ऑक्सीजन ना, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये एक सिंगल ऑक्सीजन बचा है, ये 1st कार्बन और 5th कार्बन में से कॉमनली शेयर होगा, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन हमें पता है 2 बॉन्ड बनाता है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो ग्लूकोज का ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये एक्चुअली में रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। तो यानी ये एंटायरली फ्री नहीं होता है, यानी ये जो हम बात करें ना इसकी, ये पूरी तरीके से फ्री है ही नहीं। आप देखो ना, एक रिंग की स्ट्रक्चर एक रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एंटायरली फ्री होता ही नहीं है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो यहाँ से हमारे पास आया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या आया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब साइक्लिक में भी हमारे पास 2 वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है, साइक्लिक में भी हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, और यही साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की वजह से ही, ठीक है, हमने वो रिंग स्ट्रक्चर दिए विच वर गिवन बाय हैवर्थ।
ठीक है, जो किसने दी? हैवर्थ ने। हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जो एक्चुअली में किससे डिराइव है? जो एक्चुअली में डिराइव है पायरान से, ठीक है। पायरान क्या होता है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। पायरान इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच हैज़ अ टोटल ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? पायरान हम सबने पढ़ रखा है, इट हैज़ अ टोटल ऑफ, ठीक है। सो पायरान की अगर मैं बात करूँ तो पायरान इज बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो द रिंग लुक समवॉट लाइक दिस, एक मिनट, या इट लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने ग्रुप्स शो नहीं किए हैं ये हो जाएंगे कार्बन, तो इट्स हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। 5 कार्बन एटम, 6 मेंबर्ड रिंग होती है हेट्रो बेसिकली, और इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। द रिंग लुक समवॉट लाइक दिस। तो पायरान के स्ट्रक्चर से हमने डिराइव की, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड होकर हमने दी पायरानोज रिंग ऑफ ग्लूकोज, उससे इंस्पायर्ड होकर हमने क्या दी? पायरानोज रिंग, द पायरानोज रिंग। ऐसी फ्यूरान होता है, फ्यूरान के स्ट्रक्चर से हम फ्यूरानोज रिंग देंगे, ठीक है। तो अब कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर एंड बैक टू द वर्ड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, मैं बना ही लेती हूँ इस पायरान रिंग को, ठीक है। आपको ये बनाना ही सिखा देते हैं एंड देन विल गेट बैक टू द वर्ड। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक काम करें ना यार, प्लीज़ ये एक बार रिड्यूस हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी यार। क्या अनग्रुप हो सकता है ना? अनग्रुप, अरे यार अभी तो मैंने इसको किया था, इट वाज हैपनिंग राइट। वन सेकेंड, एक मिनट बचा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट यार, ये क्यों नहीं हो रहा है? आई वंडर, व्हाई इज इट हैपनिंग यार? ये इंडिविजुअली हो रहा है, हैवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब काम करते हैं, इसको तो वैसे भी हम इरेज कर ही सकते हैं, तो जब हमें हैवर्थ प्रोजेक्शन बनानी होंगी फिर उसके लिए। तो आपने समझ तो लिया कि वो आई किससे हैं? वो आई फ्यूरान के स्ट्रक्चर से हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली वो बनेंगी कैसे, ठीक है, अमीन पायरान के स्ट्रक्चर से। तो यू नो द रिंग विल लुक समवॉट लाइक दिस, द रिंग विल लुक समवॉट लाइक दिस, ऐसी दिखेगी, ठीक है। उसमें ऐसे फिर 4 डंडे, ऐसे ऐसे ये जो है ना कॉर्नर, ऐसे डंडे बता दो, ठीक है, ये हो गई। अब नाउ यू नंबर इट फर्स्ट, सबसे पहले क्या करोगे? नंबरिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स आपको ऊपर दिखेगी। अभी आप देखना, सिक्स अभी मैं दिखा नहीं रही, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग, बेसिकली 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना। तो अब यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, ये वाली रिंग हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो इसमें भी 5 ही कार्बन आ रहे हैं ना रिंग के अंदर। रिंग के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? जरा 5 कार्बन एटम्स विद इन द रिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन एटम्स है ना विद इन द रिंग। तो ये देखो, अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो ना, अब इसमें देखना बच्चों, जो भी चीज़ इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज एक्चुअल स्ट्रक्चर ओपन चेन नहीं था, इंटायरली फ्री नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो टॉप पे आएगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो टॉप पे आएगा, जो राइट हैंड साइड में है वो बॉटम में आएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो टॉप पे आएगा, जो राइट हैंड साइड में वो बॉटम में आएगा। जैसे फर्स्ट कार्बन एटम में हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो टॉप पे आएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो भी है वो बॉटम में आएगा। सो HOH, जैसे सेकंड कार्बन की बात करूँ, सेकंड कार्बन में H, ठीक है, फिर OH। थर्ड कार्बन एटम की बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें OH, इसमें OH और H, ठीक है। थर्ड कार्बन एटम के ग्लूकोज को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं ना कि थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो राइट में होता है, जो राइट में है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो फिर इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? OH, ठीक है। अब फोर्थ में HOH। फिफ्थ की अगर बात करूँ, फिफ्थ कार्बन को आप थोड़ा ध्यान से देखना। फिफ्थ कार्बन जो है वो इस देखो क्लोज रिंग वाले ऑक्सीजन से अटैच्ड है, देखो आपको दिख भी रहा होगा। जो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन है वो इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है, देखो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अभी जो फिफ्थ कार्बन है ये एक हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, और एक CH2OH। और ये जो CH2OH है बच्चा, CH2OH, ये बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप्स कभी भी नीचे नहीं आते, इसको ऐसे ध्यान रखो। तो बल्कि ग्रुप हमेशा टॉप पे आएगा, CH2OH, और जो H है वो नीचे आएगा। तो ये हो गई हमारी 6 कार्बन, ठीक है। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज हाउ यू ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा ना अब राइबोस। हमारे पास अब क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा राइबोस, ठीक है। राइबोस बच्चा क्या होता है? राइबोस होता है पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोस। इट्स अ पॉलीहाइड्रोक्सी, अगेन यू नो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोज है, एल्डोपेंटोस है बेसिकली। और याद रखना, इसको याद रखने की, जैसे ग्लूकोज में हमने याद रखने की ट्रिक क्या बनाई थी कि जितने भी हमारे थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो राइट हैंड साइड पे होगा। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि पहली बात तो ये पेंटोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन एटम्स होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल होता है तो वो एंड में होगा। और जितने भी OH होंगे ना, उससे सारे के सारे OH वो राइट हैंड साइड पे होंगे। राइबोस किस में पाई जाती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA।
So give me a moment, let me have a sip of water because I've been speaking for so long, and yeah, I would remind you to stay hydrated, and just have a sip of water, and yeah, you're good to go. Thank you so much everybody for giving me that little water break. Coming back to the topic, एक काम करते हैं, अब राइबोस का स्ट्रक्चर बनाते हैं. लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर, ठीक है. लेट्स नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस टुगेदर. तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस एंटायर थिंग, एक साथ इसको डिलीट कर देते हैं. डिलीट. Oh my god, why did that got deleted? Can you just अरे यार ये क्या हो गया भाई. Just give me a moment. Okay, coming back to ribose now. Interesting topic again. Ribose. चलो राइबोस की अब बात करें. राइबोस में क्या बोला, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पेंटोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन एटम्स है, ठीक है. तो 5 कार्बन एटम्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम्स है. और क्या कहते हैं, एल्डिहाइड एल्डोस है, राइट. तो जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो तो ऊपर ही आएगा, राइट. तो यहाँ पे चाहे आप इसको H ऐसे कर लीजिए, कैसे ही लिख दो, ठीक है. अब उसके बाद मैंने क्या बोला, जितने भी बचे हुए उसमें जितने भी कार्बन है, उसमें जो OH है वो राइट में आ रहा है. OH राइट में है, OH. अब जो रिमेनिंग वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो. इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 और बना दो. इसका 3 बॉन्ड बने हुए, 1 और बनेगा. इसके 3 बॉन्ड बने हुए, 1 और बना दो. इसके 3 बॉन्ड बने हुए, 1 और बना दो. इसके तो चारों के चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो ये लीव इट एज इट इज. एंड दिस व्हाट यू सी राइट ऑन योर स्क्रीन बचा, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस. ये किसका स्ट्रक्चर है, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है, राइट. अब देखो इस, ओ माय गॉड यार, इसका एक H क्यों रह गया भाई, ठीक है. एक मिनट, H को हम अलग से बना देंगे, 1 मिनट, ठीक है. अब इसी से ना मैं राइबोस की हैविट्स प्रोजेक्शन भी बना सकती हूँ. आई कैन एक्चुअली ड्रॉ दी हैविट्स प्रोजेक्शन ऑफ राइबोस एज वेल यूजिंग द सेम थिंग, राइट. अब बच्चा इसमें भी वही सेम चीज़ हुई. इसमें भी जो लास्ट कायरल कार्बन था, बेसिकली लास्ट कायरल कार्बन जो था वो काफ़ी नोटी निकला. लास्ट कायरल कार्बन एटम यही होगा, राइट. ये काफ़ी नोटी निकला. इसने क्या किया, इसने अगेन फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन पे अटैक किया. एक मिनट, ये फंक्शनल ग्रुप की कार्बन पे अटैक किया, इसका एक बॉन्ड टूटा, ठीक है. अभी एक बॉन्ड तो अलग हो गया. अब नाउ इट्स एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ 2 डिफरेंट बॉन्ड्स. ये एक OH एक, और ये एक बॉन्ड फ्री हो गया, राइट. अभी एक ऑक्सीजन तो बहुत अनस्टेबल है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना के तो काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा, राइट. सो व्हाट ऑक्सीजन एक्चुअली डज इज, ठीक है, ऑल्दो अटैक तो हुआ है, राइट. तो अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड ये हो गया ऑक्सीजन, ये वाला ऐसे ऑक्सीजन के साथ, और ये एक बॉन्ड फ्री हो गया, राइट. तो अब ये जो स्कायरल कार्बन का हाइड्रोजन है ना, दिस कम्स टू द रेस्क्यू. ये बोलता है यार एक काम करता हूँ, मैं तुझे स्टेबल करने के लिए तेरे साथ एक बॉन्ड बना लेता हूँ. तो इसका ये जो हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, राइट. इसका हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से गायब हो जाएगा. अब बेसिकली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये एक अनपेयर्ड बॉन्ड बचा है. तो ये जो ऑक्सीजन है, ये लास्ट कायरल कार्बन का ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड इससे भी बनाएगा और एक बॉन्ड इस फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से बनाएगा. एंड नाउ व्हाट यू एक्चुअली गेट माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. अब आपको जो एक्चुअली में मिलता है ना, और यू एक्चुअली गेट इज़ अ 4 मेंबर्ड रिंग, राइट. अब देखो 1 2 3 4, ये 4 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, राइट. ये 4 मेंबर्ड रिंग जो हमें मिल रही है, ये 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है. ये अब ठीक है, अब इसको अगर मुझे हैविट्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वो स्ट्रक्चर जो होगा वो फ्यूरान से डिराइव होगा. बिकॉज फ्यूरान क्या होता है, इट्स अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है. इसमें देखो 1 2 3 4, इसलिए इसका जो हैविट्स प्रोजेक्शन है फ्यूरान से डिराइव है. ग्लूकोज का पायरान से था, इसका फ्यूरान से है, ठीक है. 4 कार्बन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है. सो लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर. जब मुझे इसका हैविट्स प्रोजेक्शन बनाना हो तो ये फ्यूरान से डिराइव्ड है, राइट. सो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, मैं एक काम करते हैं, ऐसे पेंटा फ्यूरान ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे बिकॉज 5 मेंबर्ड रिंग होती है. अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक ऐसे ऐसे बॉन्ड्स, ठीक है. अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज़ यू जस्ट नंबर इट. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5, राइट. तो ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 अभी देखेंगे. अब आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो बेसिकली मेरी फर्स्ट कार्बन है और फोर्थ कार्बन है, ये जो मेरी फोर्थ कार्बन है और फर्स्ट कार्बन है, ये दोनों इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है. ये देखो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन दोनों इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, राइट. अब जैसे कि मैंने बताया था, जो भी लेफ्ट में है वो टॉप पे आएगा और जो राइट में है वो बॉटम में आएगा, राइट. तो मान लो अगर इस H को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये लेफ्ट साइड में हो गया, तो HOH, ठीक है. इसमें सारे OH राइट हैंड साइड पे होते हैं, राइट. सो HOH HOH. अब जो फोर्थ वाली कार्बन के लिखो, देखो
फोर्थ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है, राइट। और बल्कि ग्रुप कभी भी नीचे नहीं आता, राइट। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H, राइट। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ कार्बन आटम। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द हैविट्स प्रोजेक्शन ऑफ राइबोस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ में आया? आई एम श्योर समझ में आया होगा। ट्राइड रियली हार्ड टू। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द बोर्ड, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फर्दर।